So dear students, this time as we had already covered first chapter and finished the back exercise also. So today we are going to discuss the next chapter, which is your chapter number 3, Advanced Features of MS Word. Okay. Before starting the chapter, I want to know some question. I want to ask these questions to you guys so that I can actually got to know what you understand, what you know about this particular software, MS Word. Okay. So raise your hand who want to tell. Okay. And why we use this MS Word. That's it. Okay. So now, Ma'am, it is a software that is used to make files, documentaries, etc. what kind of documentaries? Videos or something else? Ma'am, no, ma'am. Topics like my school. Ma'am, it helps us to write some paragraphs, some files, to make some files, ma'am. Very good, very good. Yeah. So basically, the main reason behind using this software, MS Word, is for typing purpose. है ना? Okay, Saksham wants to add on something. Yes, Saksham? Ma'am, MS Word is a software that help us to introduce any topic to the suspected in a attractive way. Okay, yeah, It that's... helps us to add themes and edit the font, which makes the topic more clear to the like to Audience. audience. Yeah, fine. Yes, exactly. MS Word जो है हमारा एक editing software है जिसमें हम typing कर सकते हैं. We can do any kind of changes, that is editing, and then we can format also, right? While doing all these things in the class 4 or in class 5, you maybe have done these features, like कुछ लिखा है उसको हमने bold कर दिया. करा है ऐसे कभी? करा है? Bold? Okay. Underline करते हो sometime? By using underline feature? That's pretty good. Okay. Had you ever used word or feature of the subscript, superscript or something like that? MS Word में हम ये सारे features use करते हैं, right? Okay. So today हम उन features के बारे में discussion नहीं करेंगे जो हम already कर चुके हैं. What we are going to discuss is their advanced feature. Now coming on to the advanced feature. अब advanced feature है क्या? First topic जो है इस chapter का spelling and grammar check. ठीक है? Spelling and grammar जो है, this is the first advanced feature or the first topic. Spelling and grammar. Okay. Can you tell me what is spelling? Spelling mistakes कब होती हैं? Raise your hand if you know this answer. What is spelling mistakes? Okay, Nishtha. Yes, Nishtha? Ma'am, spelling mistakes are, we can say, a silly mistake. When we know the word, but by mistake we write incorrect word. Like ma'am, in write we have to write a letter writing. But ma'am, for letter writing spelling we write RIGHT. But we have to write WRIT. Okay, yes, exactly. When we have to write something, but हमने by mistake उसमें spellings wrong लिख दिए. Suppose यहाँ पे मैंने MS word लिखना था, मैंने word डाल दिया L, world डाल दिया. तो for me it's a spelling mistake. But sometime क्या होता है, दोनों words exist करते हैं, है ना? MS word भी word है, MS world तो नहीं है, चलो, but world एक word अलग से है ना? How computer is going to assist us कि हमारी कहाँ पे mistake हुई है, कहाँ हमने word misuse कर दिया है ना? Because sometime क्या होता है, word correct होता है, spelling correct होता है, but उसका meaning कुछ और ही होता है, और हमारे sentence में जब वो word add होता है, उसका meaning ही change हो होता है ना ऐसा? अब मैं अगर लिखूं world, simple लिख रही हूँ worlds, ये word है, हम इसको wrong मानेंगे क्योंकि इसमें spelling mistake है ना? But अगर मैं लिख दूं वर्ल्ड, तो ये मिस्टेक तो नहीं है ना? वर्ड तो होता है ना वर्ल्ड, पर MS वर्ल्ड तो नहीं आएगा ना?
नहीं ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू कन्वे। समटाइम क्या होता है, हमारी मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक होती है, समटाइम्स मिसयूज्ड वर्ड और सम ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। सो एमएस वर्ड इज गिविंग अस अ फीचर बाय व्हिच ही इज or that software is going to assist us कि okay you are doing some kind of mistakes over here, okay, if either it is a spelling mistake or it is a grammatical mistake. How could we get to know कि spelling mistake कब हो रही है और grammatical या misused word जो है वो कब आ रहा है। अब यहाँ पे भी इसको इंडिकेशन देने के लिए इसने दो अलग अलग मेथड यूज किए। पहला, यूजिंग रेड वेवी लाइन, मैं वेवी वर्ड नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है। रेड लाइन, जब किसी वर्ड के नीचे टाइप करने के बाद इस तरह की रेड कलर की लाइन आ जाए, देन इट मीन्स इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। एग्जैक्टली जब आपके टेस्ट या नोटबुक आपके टीचर चेक करते हैं, इधर वहां पे वो सर्कल कर देते हैं या फिर उसको अंडरलाइन कर देते हैं रेड पेन से, ऐसा ही होता है ना। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। यहाँ पर एमएस वर्ड सर्कल नहीं करेगा, बट वो रेड लाइन से उसको अंडरलाइन कर देगा, जस्ट टू टेल अस दैट देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। Okay, so there is a spelling mistake. After that, there is another indication. अब ये इंडिकेशन थी जब हमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। दूसरी इंडिकेशन आती है ब्लू लाइन से, ठीक है, यूजिंग अ ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन से में भी वैसे ही वेवी लाइन आती है। ये वेवी लाइन कब आती है? when we are doing some grammatical errors या फिर कोई मिस यूज कर रहे हैं वर्ड का, ठीक है। So this is basically for grammatical errors. Now you have to tell me, red is for spelling mistake and blue is for grammatical errors, okay? मैंने word लिखा है honest, ये red line से आएगा या फिर blue line से, and why? You have to tell me the reason also, okay? Yes, Hemang. गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon. मैम ब्लू लाइन से मैम, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर है। क्या ग्रामेटिकल एरर है? मैम क्योंकि एन ऑनेस्ट होता है। Exactly. Very nice, Hemang. Yes, an honest person होता है, honest नहीं होता. So that is why यहाँ पे वो grammatical error show करेगा and grammatical error के लिए वो blue line दे देगा हमें वहाँ पे, ठीक है? Just to tell us your spelling is correct, but still there is a mistake and that is your grammatical mistake. Clear? Okay. Now one more time, same sentence ले रही हूँ. an honest, honest. अब कौन सी लाइन आएगी? मैं लिख के बता देती हूँ आपको अगर लग रहा है डाउट ही। ये लिखा मैंने एन, अब बताओ इसमें कोई मिस्टेक है तो किस लाइन से शो होगी और मिस्टेक क्या है, ठीक है? ये दोनों चीजें बतानी है आपने। यस शौर्या। Ma'am, will red line. Why red line? Ma'am, because the spelling of honest is wrong. Okay, और क्या मिस्टेक है? क्या आना चाहिए था, क्या चीज मिसिंग है या क्या चीज एक्स्ट्रा है ऑनेस्ट की स्पेलिंग में? यस लवनूर, कैन यू टेल दिस? मैम आपने ई नहीं डाला। वेरी नाइस, यस। सो यू शुड बी अलर्ट, क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग है हमें पता है, स्पेलिंग एरर है, बट करेक्ट क्या होना था, ठीक है? दिस आल्सो वी शुड नो। सो देयर इज अ मिसिंग ई, उसकी वजह से उसने क्या किया, इस पूरे वर्ड को रेड से अंडरलाइन कर दिया, जस्ट टू इंडिकेट अस देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। क्लियर? नाउ हाउ कुड वी टर्न इट ऑन? अगर मान लो हमारे कंप्यूटर में हम टाइप कर रहे हैं बट ना तो वो ब्लू लाइन शो कर रहे हैं ना रेड लाइन शो कर रहे हैं, हम उसको कैसे गाइड करें, कैसे उसका ये फीचर ऑन कर सकते हैं? देयर इज जस्ट वन सिंपल कमांड फॉर दैट,
Note it down if you want. What is the command? There is a review tab in our MS Word window. Okay, so you need to go to there in review tab, and there in the review tab you will be able to find multiple groups. But हमें कौन से ग्रुप में जाना है? प्रूफिंग ग्रुप, which is the first group. ठीक है, प्रूफिंग ग्रुप है जो रिव्यू का फर्स्ट ग्रुप होता है. So we are going to go in that group, proofing group. Now in this proofing group हमारे पास ये ऑप्शन है spelling and grammar. ठीक है, so we are going to choose that option now. Spelling and, उसमें इस तरह का सिंबल आता है and के लिए. ठीक है, spelling and grammar. बस, that's it. Okay, so this spelling and grammar feature को जब हम on कर देते हैं, that means ये feature जो है हमारा enable हो जाता है. ठीक है, active हो जाता है, और फिर हमें जितनी भी हमारी mistake है वो underline कर करके हमें indication देता रहता है साथ साथ में. ठीक है, now the thing is, अब टीचर हमें गाइड करता है, जैसे आपकी ये मिस्टेक होती है ना, बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको वो करेक्ट करनी है या नहीं करनी. ठीक है, अब सपोज दैट कुछ पर्सन होते हैं जो दीप में या जीत में JIT डालते हैं, नेम्स होता है सिमरन जीत है जैसे सपोज. ठीक है, जीत में JIT डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं JEET, दोनों ही करेक्ट है, राइट. So sometime हो सकता है वो spelling correct हो, but computer is showing you an error. So there is a situation when we have to decide, do we need to do something for that, or we should tell the computer to ignore it completely. Okay, and one more thing before doing it practically, there is one shortcut key to enable this feature. Either you can go to review tab, proofing group, और इस पे क्लिक कर दो spelling and grammar पे, or there is just one simple shortcut F7. ठीक है, F7 जो है, F और 7 बटन साथ में नहीं प्रेस करना, you need to press F7 फंक्शन की, जो हमारी फंक्शन की होती है ना कीबोर्ड पे, F1, F2, F3, वो F7 जो बटन है, that you need to press. Clear? And after that this feature is going to be active. Clear? Now let me show you this thing practically. So here you can see on my screen there is a MS Word window, right? In this MS Word window I had typed few things. यहाँ पे मेरा फीचर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला वो इनेबल है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो रेड लाइन से शो हो रही है. इन केस इनेबल नहीं होता तो हमने क्या करना होता है, ये रिव्यू टैब, हियर इट इज बेटा, ऊपर जो है ना होम, इंसर्ट, डिजाइन टैब, इन टैब्स में लास्ट सेकंड जो टैब होती है हमारे पास, दैट इज योर रिव्यू टैब. अब इस रिव्यू टैब पे आपने जाना है, एंड इस रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड मल्टीपल ग्रुप्स, पर हमने फर्स्ट ग्रुप लेना है, ये वाला, ये प्रूफिंग ग्रुप जो हमारा. ठीक है, इन दिस प्रूफिंग ग्रुप फर्स्ट फीचर ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर. जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड ये अपने आप ऑन हो जाता है, या फिर ये देखो शॉर्टकट की भी आ रही है ना F7 प्रेस करो तब भी ये एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है. नाउ लुक एट दिस, जब मैं अब इस पे दोबारा क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है, एक विंडो आ जाती है साथ में. आर यू एबल टू सी दिस विंडो? स्पेलिंग लिखा आ रहा है जिसमें, है ना. अब इस स्पेलिंग में क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है मेरी, फीचर वर्ड मेरा जो है हाईलाइट है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, और साथ में मुझे कुछ सजेशंस आ गए. आप इस पे राइट क्लिक करोगे तब भी ये सजेशंस आते हैं, इस पे क्लिक करके ये विंडो ओपन करोगे तब भी वही सजेशंस आते हैं. ठीक है, सो चॉइसेस योर, आपने कहाँ से करना है, या तो राइट क्लिक करके डायरेक्टली चूज कर लो, या फिर इस स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पे क्लिक करो तो ये विंडो ओपन हो जाएगी. अब आप इस विंडो में से भी वो जो वर्ड्स हैं, जो ऑप्शंस वो प्रोवाइड कर रहा है, वो आप चूज कर सकते हो. अब चूज करना कैसे है, राइट क्लिक करके तो जस्ट सिंपल देखो, ऐसे राइट क्लिक किया, जो वर्ड करेक्ट है, मिस्टेक जिसमें नहीं है, क्लिक करो, अपने आप चेंज हो जाता है. या फिर दूसरा वे क्या है, इसमें से चूज करना है, क्लिक करके चेंज बटन पे क्लिक करना पड़ता है. ठीक है, अगर आप विंडो में से कर रहे हो देन यहाँ पे आपको चेंज बटन पे क्लिक करना पड़ता है.
एंड फिर वो वर्ड जो था, देखो यहाँ पे मिस्टेक हट गई ना, बिकॉज ए मिसिंग था। जब मैंने चेंज कर दिया उसने ए डाल दी, वहां पे लिख दी ए, एंड देन वो रेड लाइन गायब हो गई। व्हाई? बिकॉज नाउ देयर इज नो एरर। बिना वजह थोड़ी वो हमें मिस्टेक कहेगा आपकी गलती है ना। तो जब वो मिस्टेक रिमूव हो जाती है, ऑटोमेटिकली लाइन भी रिमूव हो जाती है। अब देखो सेकंड वर्ड एमएस वर्ड में वो सजेशन दे रहा है आपको, एमएस वर्ड में एमएस कैपिटल लिखना चाहिए था। इधर यू वांट टू, यहाँ पे आपकी चॉइस है, अब आप मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते हो, ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि ठीक है एमएस कैपिटल आना चाहिए था, फिर तो क्लिक करके आप चेंज कर दो, सिंपल। अगर आपको लगता है कि नहीं स्मॉल में भी ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम है, तब आप इग्नोर कर सकते हो इसको, ठीक है। इग्नोर करने से भी क्या होता है, वो जो है लाइन हट जाती है। बट नाउ इट इज शोइंग अ ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर क्या है, ग्रामेटिकल में वो कहता है ओके पूरा नहीं तो एटलीस्ट एम कैपिटल कर दो। अब यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस है, या तो चेंज कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। दिस टाइम आई वांट ओके, चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स अपॉन यू, इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो, ओके। अब इग्नोर में और इग्नोर ऑल में क्या फर्क है, लुक एट दिस। यहाँ पे जब हम ओके कर देते हैं कोई मिस्टेक नहीं होना होती, वो विंडो अपने आप साइड वाली गायब हो जाती है एंड मैसेज शो हो जाता है यू आर टू गुड टू गो, ठीक है, एंड देयर इज नो एरर। अब यहाँ पे सपोज मैंने वर्ड लिखा सुमन दीप, ठीक है। इस एमएस को वो कैपिटल की वजह से मिस्टेक मान रहा था, अब हमने करेक्ट कर दिया। अब सुमन दीप में कोई मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा है सुमन दीप। अकॉर्डिंग टू माइंड, मुझे पता है कितने सालों से मैं अपना नेम कैसे लिखती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई एरर नहीं है, बट कंप्यूटर इज शोइंग देयर इज एन एरर। डज इट मीन शुड आई चेंज माय नेम? Not at all, right? Not at all. Nobody is going to change a name just because computer is saying there is an error, है ना। अब कंप्यूटर एरर भी देखो क्या बता रहा है, हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। कंप्यूटर कह रहा है या तो सुमनदीप में स्पेस डालो या फिर संदीप कर दो उसको। Why should I change my name? Why should I change it to Sandeep? Or why should I give a space? It's my own choice, right? So यहाँ पे इस केस में आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है इसको, ओके। अब मान लो आपने एक ही बार लिखा है तो आप इग्नोर कर दोगे। अब यहाँ पे मान लो 10 डॉक्यूमेंट हो, हर एक के नीचे मैंने सुमनदीप लिख के साइन करे हैं, तो शुड आई इग्नोर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, 10 टाइम इग्नोर करूं? नो। तब मैं क्या करूंगी, इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल से क्या होता है, जितने बार वो वर्ड है जिसको वो एज अ मिस्टेक काउंट कर रहा है, हर बार उसको वो इग्नोर कर देगा। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हो, 50 हो, 100 हो, जितनी भी बार वो वर्ड लिखा गया है, हर बार उसको इग्नोर कर दो, डोंट कंसीडर इट एज अ मिस्टेक, ओके। So keep it in mind beta, there is a difference between these two, ignore and ignore all, okay. Now the another feature we got is add. अब add क्या होता है, जस्ट आई इग्नोर दिस, है ना, एक बार इग्नोर हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, एक न्यू फाइल बना रही हूँ, उसमें अगेन मैंने अपना नेम लिखा सुमनदीप, बट अगेन एंड अगेन इट्स शोइंग इट एज अ मिस्टेक। रीजन, बिकॉज उसके डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है ना। सो दिस फीचर ऐड हमें अलाउ करता है टू फीड दिस वर्ड इन दैट मेमोरी, उस कंप्यूटर की उस एमएस वर्ड की मेमोरी में वो फीड कर दे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड वर्ड दिया हुआ है, आर यू एबल टू सी दिस ऐड वर्ड? या दिस थर्ड वन, या एग्जैक्टली। तो ऐड वर्ड पे जब हम क्लिक कर देंगे, इट मींस एडिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। मैंने ऐड पे क्लिक करा, यू आर फिनिश्ड चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब उसने पूरा सिलेक्ट जो देख लिया है, कोई मिस्टेक नहीं लग रही, अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो, ठीक है। सो फाइन, उसने पूरा चेक कर दिया, उसको कोई एरर नहीं मिला। नाउ व्हाट हैपेंड इज, सुमनदीप जो था नेम मेरा, उसके डिक्शनरी में फीड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम चाहे मैं 10 डेज बाद, 20 डेज बाद, जब भी मैं एमएस वर्ड खोल के कोई भी फाइल बनाऊंगी और अपना नेम लिखूंगी, वो मुझे ये मिस्टेक नहीं बताएगा कि सुमनदीप इसमें कोई एरर है, इस वर्ड में कोई भी मिस्टेक है। क्लियर? अंडरस्टूड नाउ?
If it is clear to you, now quickly tell me what is the shortcut key to enable this feature, spelling and grammar. Let's see how much you remember. Okay, that's good. Yes, exactly. It is F7. F7 is a shortcut key to enable this feature, spelling and grammar.